حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے اس کی آفت کم ہو جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جسے کسی چیز کا یقین ہو اور پھر اس کے متعلق شک ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے یقین پر عمل کرے، کیونکہ شک یقین کو جھٹلا نہیں سکتا۔ بہت سے بد نصیبوں کی تقدیر بدل جاتی ہے، بس نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور بہت سے نصیب والوں کا مقدر بگڑ جاتا ہے، لہٰذا مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبح سویرے اپنے کاموں کی انجام دہی کے لیے نکل پڑو، ایسا کرو گے تو تمہارے مقاصد آسانی سے حاصل ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نیک بدلہ تو نیکی کرنے والے ہی کو دیا جائے گا، برائی کرتے ہوئے نیکی کا طلب کرنا عقل اور احساس کے برباد ہونے کا ثبوت ہے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جو اپنی آخرت کی طرف بڑھتا ہے اور اپنے عمل کو خالص کر لیتا ہے۔ کسی بندے کے لیے مناسب نہیں کہ وہ دو چیزوں پر بھروسہ کرے، ایک صحت اور دوسرے دولت، کیونکہ ابھی تم کسی کو تندرست دیکھ رہے تھے کہ وہ دیکھتے ہی دیکھتے بیمار پڑ جاتا ہے، اور ابھی تم اسے دولت مند دیکھ رہے تھے اور وہ فقیر اور نادار ہو جاتا ہے۔ لوگوں میں زیادہ نادار وہ ہے جو اپنی عمر میں کچھ بھلائی نہ کر سکے، اور اس سے بھی زیادہ بدحال وہ ہے جو پا کر بھی کھو دے۔ اگر انسان یہ سمجھ لے کہ کوئی چیز مستقل نہیں ہے، پھر نہ تو وہ اچھی قسمت پر زیادہ خوش ہوگا اور نہ ہی اپنی بری قسمت پر غمزدہ ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تو 10 سال تک بھی بے روزگار رہے اور تیرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو تو پھر بھی علم سے منہ مت موڑنا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان جب سفر کرتا ہے تو اس طرح اسے کائنات کے رنگ دیکھنے اور قدرت کے نظاروں کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے جو ایک طرح سے عبادت کے برابر ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کمینے سردار ہوں گے تو امیدواروں کی امیدیں خاک میں مل جائیں گی۔ مولانا رومی فرماتے ہیں انسان کی ہر تمنا اس بنا پر ہے کہ اسے اپنی تمنا کے پیچھے موجود عیب کا پتہ نہیں۔ اگر اس آرزو کا عیب ظاہر ہو جائے تو پھر انسان کھینچنے سے بھی ادھر نہ جائے۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں آنسو قریب ہونے کا ثبوت ہے، جب روح کا روح سے وصال ہوتا ہے تو آپ کو آنسو آ جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اے انسان نہ تجھ سے پہلے زندگی میں کوئی کمی تھی اور نہ تیرے بعد کوئی کمی ہوگی۔ اگر انسان ایک ہی پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے تو اسے اپنے صحیح ہونے کی ضد سے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے بے حیائی کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہو یا چھپی ہوئی۔ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے نفس یہاں تھوڑا سا تھک لو، پھر جنت الفردوس میں بہت سا آرام ملے گا۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کی قسم دنیا کی اس فراخی میں کوئی خیر نہیں جو آخرت کا راستہ تنگ کر دے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں وہ آدمی جو تنہائی کا مومن ہے وہی اصل مومن ہے۔ نفرت، کینہ، بغض، جذبہ انتقام، حسد، لالچ، جسم پرستی دل کے سکون کے دشمن ہے۔ سکون والا انسان دوسروں کی زندگی اور خوشی کا احترام کرتا ہے۔ ترکیب یہ ہے کہ اللہ پر راضی رہنا سیکھو، زندگی پر راضی رہنا سیکھو، دوسروں کے امن سے پریشان نہ ہوا کرو۔ دوسروں کا کام ہی پریشان کرنا ہے،
जिसने दूसरों के अमन को अपनी परेशानी ना बनाया वो आदमी कामयाब है। आप फरमाते हैं, तुम ऐसा करो कि कम गो हो जाओ, खामोश हो जाओ या ज़्यादा ना बोलो और बावजू रहने की कोशिश करो। अच्छे और पुरुम्मीद दिन का सूरज उस वक्त तक तुलू नहीं होगा जब तक आप अपने गुज़श्ता रोज़ वाले मायूसी के सूरज को गुरूब नहीं करेंगे। दिल से ज़्यादा महफूज जगह दुनिया में और कोई नहीं, और सबसे ज़्यादा लोग लापता भी यहीं से होते हैं। मोहब्बत कोई भी हो सिर्फ दो पैरों पर सीधी खड़ी होती है, जिसमें एक पैर तवज्जो का और दूसरा पैर इज्जत का है। दोनों में से एक भी खो जाए तो मोहब्बत माजूर हो जाती है। अल्लाह करीम को जिनसे मोहब्बत होती है उनकी दुनिया भी मोहब्बतों से वाबस्ता ख्वाहिशात, खौफ और उम्मीदों को बसा औक़ात तोड़ दिया जाता है ताकि उन्हें अल्लाह के सिवा किसी और का खौफ और चाहत ना रहे। और ये बड़ी खुशकिस्मती का मकाम है। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, हमारी तबलीग का मंशा हो चुका है कि मुसलमानों को कभी यकीन के साथ इस्लाम में नहीं रहने देना। एक मुबल्लिग जो बयान कर रहा है वो हमेशा ये बताएगा कि अगर एक नमाज आपकी कज़ा हो गई तो 70,000 साल आपको उल्टा लटका दिया जाएगा। और हम कह रहे हैं कि अगर एक बार आपने कलमा पढ़ लिया तो 70 साल के गुनाह माफ़ होंगे। तो हम और बात कर रहे हैं। तवक्कुल करो अल्लाह पर और दिन तुम्हारे अनकरीब बदल जाएंगे। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी दुआओं के ज़रिए ही आजमाता है। वो ताख़ीर इसलिए करता है ताकि तुम्हारा यकीन देख सकें। तुम जितनी दफ़ा दुआ मांगते हो अल्लाह उतनी दफ़ा तुम्हें तुम्हारी दुआओं के जवाब देता है। तुम यहाँ एक कतरी के लिए रो रहे हो जबकि तुम्हारा रब तो तुम्हें 7 समंदर अता करने पर भी कुदरत लगता है। तुम्हारा काम बस दुआ करना है, अता की तदबीर वो खुद बनाता है। अगर हिम्मत और हौसला हार गए हो तो सजदे में गिर जाओ, फ़कत एक लब की मोहब्बत में कि वो रब तुम्हें अपनी मोहब्बत में मुब्तला करने का सोचे हुए हैं। ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारी खामोशी भारी पड़ जाए, और ये भी तो मुमकिन है कि तुम्हारी सब्र का अज्र तुम्हारी सोच से भी बड़ा हो। देर हो रही है तो ज़रूर कुछ बेहतरीन मिलने वाला है। वक्त जब फैसला करता है तो गवाहों की ज़रूरत नहीं पड़ती। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, खौफ से बचने का वाहिद मुनासिब और आसान तरीका यही है कि इंसान में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए। ये खौफ हर खौफ से निजात दिलाता है। इंसान अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दे तो हर खौफ ख़त्म हो जाता है। अल्लाह ताला ने औरत को मर्द की पेशानी से नहीं बनाया कि वो मर्द पर हुकूमत करे, और ना उसके पाँव से पैदा किया कि वो उसकी गुलामी करे, बल्कि उसकी पसलियों से पैदा किया कि वो उसके दिन के करीब हो। दुनिया कदीम है लेकिन उसका नयापन कभी ख़त्म नहीं होता। दुनिया में सबसे आसान काम नसीहत करना है और सबसे मुश्किल काम नसीहत पर अमल करना। जब एक भी पत्ती सूख कर पीली होती है तो पूरे दरख्त को उसका खामोश गम होता है। हर सोचते हुए और हर काम करते हुए ये ज़रूर देखें कि ये सोच और काम आपके मकसद में आपकी मददगार है कि नहीं। एक मर्द का ख्वाब होता है कि उसे एक कामिल बीवी मिले, और एक औरत चाहती है कि उसे एक कामिल शौहर मिले, मगर वो ये नहीं समझते कि अल्लाह ने उन्हें एक दूसरे के मुकम्मल करने के लिए बनाया है। एक बात का बड़ा ख्याल रखो कि आप दिलों को राज़ी रखो। ये ना करना कि लोगों को तकलीफ़ दो और ख़ुद बड़े आबिद और तहज्जुद गुज़ार बन जाओ। कभी भी शादी के खाने की बुराई ना कर। बेटी के बाप की पूरी उम्र लगी होती है
सिर्फ उस एक वक्त के खाने के लिए। मोहब्बत में बच्चे बन जाओ और लड़ाई के वक्त समझदार। इस तरह सच्ची मोहब्बत कर सकोगे और समझदारी से काम लेते हुए लड़ाई भी ना करोगे। इस तरह हमेशा खुश रहोगे। बाज़ लोग पैदाइशी अजीम होते हैं, बाज़ कोशिश करके अजीम बनते हैं और बाज़ लोगों पर अजमत ठोक दी जाती है। कामिल औरत वो है जिसने अपने इज्जत नफ्स और हया को दुनिया की गंदगियों से बचाए रखा। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, भूखे के पेट में एक लुक़मा जाना या किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करना मेरे ख्याल में मस्जिद बनाने से बेहतर है। दुनिया में तुम्हारे नफ्स से ज़्यादा ऐसा कोई सरकश जानवर नहीं जो सख्त तरीन लगाम के लायक हो। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, और जिन लोगों को भरोसा रखना हो उन्हें अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। बेशक तुम्हारा रब सबको नज़र में रखे हुए हैं। और तुम ये कहो, यकीनन मेरा रब सीधे रास्ते पर मनता है। अल्लाह तुमसे क्या चाहता है? बस यही कि तुम हर किस्म के इंसाफ से अदल के साथ पेश आया करो। इससे बढ़कर ये कि उनसे भी नेकी करो जिन्होंने तुमसे कोई नेकी नहीं की। मौलाना रूमी फरमाते हैं, जो शख्स दिन की आँखों के साथ आसमान को देखेगा उसको नज़र आएगा कि वहाँ हर वक्त कुदरत का कोई न कोई मुजाहिरा हो रहा है। ये बात यकीनी है कि हर घूमने वाले के साथ घुमाने वाला है। दरअसल जब फैसला होता है तो अक्ल और समझ नहीं रहती और अल्लाह के सिवा फैसले को कोई नहीं जानता। इसलिए परहेजगारों के इमाम हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि जब फैसला होता है तो आँखें अंधी हो जाती हैं और जब फैसला हो जाता है तो इंसान शर्मिंदगी में अपने आप को काटता है। मौलाना रूमी फरमाते हैं, ये दुनिया मरते वक्त तेरा साथ नहीं देती, अपना कदम पीछे हटा लेती है। दुनिया भी यार तेरे दाएं बाएं फिरता है और दावे करता था तेरा दर्द दुख उठा लूँगा, लेकिन उसने कुछ ना उठाया। मौत के सिपाही आते हैं तो वो जान पहचान भी भूल जाता है। नफ्स की ख्वाहिशों की तमाम लज्जतें मक्र और धोखा है। नाफिस नून और झूठ और मजाज की चमक है। उसकी चारों तरफ अंधेरिया है और तेरा रास्ता लंबा है। तो उसकी रोशनी में न फत पड़ सकता है और न मंजिल तक घोड़ा चला सकता है। लोगों से मोहब्बत करके लोग अक्सर पछताते हैं, लेकिन अल्लाह ताला से मोहब्बत करके आज तक कोई नहीं पछताया। इंसान का ज़ाहिरी जिस्म मच्छर से आजिज़ आ जाता है, लेकिन उसकी रूह सातों आसमानों को घेर लेती है। इज़्ज़त अल्लाह की रज़ा में है, लोगों की फरमाबरदारी में नहीं। हज़रत अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अपनी मुसीबतों को छुपाओ, अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाएगा। आंसू हर दिल को नहीं पिघला सकते, ये फ़कत उन दिलों पर असरअंदाज होते हैं जिनमें रब बसता हो। इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ज़बान का बोला दुनिया सुनती है और दिल का कहा अल्लाह सुनता है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अच्छी आदत की मालिका नेक और पाकदामन औरत अगर फ़कीर के घर में भी हो तो उसे बादशाह बना देती है। गुनाह में लज्जत है मगर सुकून नहीं। गुनाह का मौका ना मिलना भी अल्लाह की नेमतों में से एक है। गलत फहमी का दूर होना सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन है जब सामने वाले के दिल में आपके लिए कोई खास मकाम हो। हमारे पेशे, हमारे मर्तबे, हमारे मान, हमारे असासे, हमारी फितरत नहीं बदल सकते। कमीना कमीना ही होगा, हाँ वो कहीं पर भी फाइज हो। सफ़ी सफ़ी होगा, हाँ वो गरीब हो। मंजिल सबकी अल्लाह है। मोहब्बत, हम, आजमाइश इस सफ़र का हिस्सा है। हमारी तन्हाई हमें जिस तरफ माइन करती है
बस वही हमारे अंदर की हकीकत है। साथ न देने वालों का तरीक़ा वारदात ये है कि वक्फ पड़ने पर वो नाराज़ हो जाते हैं। अगर तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा है तो अपनी दौलत में से दो, और अगर कम है तो अपने दिल में से दो। नेक लोगों की कुर्बत से हमेशा फ़ायदा होता है। अगर आप लोगों में मसावात और बराबरी देखना चाहते हैं तो कब्रिस्तान जाया करें। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, किसी पर तब तक भरोसा ना करो जब तक तुम उसे अपने लिए गुस्से में ना देख लो। जाबिर बिन हय्यान रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, तुम्हारा राज दुश्मन तक कभी नहीं पहुंच सकता जब तक तुम अपना राज अपने दोस्त तक नहीं पहुंचा देते। पैसा वो साबुन है जो आज के ज़माने में हर किस्म के दाग साफ कर लेता है। जिनके पास ज़्यादा है उनके ज़माने वालों को अदालत देंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जब किसी की सच्ची मोहब्बत मालूम करनी हो तो उसके गुस्से में अपने लिए अल्फाज और जज्बात देखो। आप फरमाते हैं, धोखा देने के 1000 तरीके हैं, लेकिन सबसे घटिया तरीका मोहब्बत और हमदर्दी का दिखावा करना है। बुराई की मिसाल ऐसी है जैसे पहाड़ से नीचे उतरना, एक कदम उठाओ तो बाकी उठते चले जाते हैं। और अच्छाई की मिसाल ऐसी है जैसे पहाड़ पर चढ़ना, हर कदम पिछले कदम से मुश्किल मगर हर कदम बुलंदी पर ले जाता है। अल्लाह के नज़दीक जिस इंसान की इज्जत जितनी ज़्यादा होती चली जाती है उसका इम्तिहान उसी कदर सख्त होता चला जाता है। वो लोग जो किसी का बुरा नहीं चाहते, अल्लाह ताला उनको ऐसी मंजिल अता फरमाता है जो उनके गुमान में भी नहीं होती। मौलाना रूमी फरमाते हैं, सब्र वाले कानों से सुनो, हमदर्द आँखों से देखो और मोहब्बत वाली ज़बान से बोलो। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जब भी तुम चाहो कि तुम्हारी दुआ अर्श तक पहुँचे और कबूल हो जाए तो पहले अपने वालिदैन के लिए दुआ मांगो। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, ए ईमान वालो, तुम एहसान जतलाकर या तकलीफ़ पहुँचाकर अपनी खैरात और नेकी को बर्बाद ना करो और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह को तुम्हारे कामों की खबर है। जो शख्स अल्लाह का सहारा मजबूती से थाम ले उस सीधे रास्ते तक पहुँचा दिया जाता है। ज़माने की कसम, इंसान दर हकीकत बड़े घाटे में है, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाएं और नेक अमल करें और एक दूसरे को हक बात की नसीहत करें और एक दूसरे को सब्र की नसीहत करें। बड़ी बरकत वाला है अल्लाह जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। और ए नबी, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दीजिए और खुद भी उस पर डट जाइए। ए अल्लाह, मेरे गुनाहों, लफ्ज़िशों और जानबूझकर किए जाने वाले गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह, मुझे माफ़ फरमा और मेरी तौबा को कबूल फरमा। बेशक तू बहुत तौबा कबूल करने वाला है, बहुत बख्शने वाला है। अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। तो मेरी इबादत करो और मेरी याद के लिए नमाज पढ़ा करो। और लोगों, तुम्हारा माबूद अल्लाह वाहिद है, उस बड़े मेहरबान और रहम करने वाले के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। आम लोगों के लिए तो ये कुरान बयान है और परहेजगारों के लिए हिदायत और नसीहत है। ये कुरान वो रास्ता दिखाता है जो सबसे सीधा है और मोमिनों को जो नेक अमल करते हैं खुशखबरी देता है कि उनके लिए अजर अज़ीम है। जो अल्लाह जल्ल शानुहू से इल्तिजा करते हैं कि ऐ परवरदिगार, हम ईमान ले आए,
सो हमको हमारे गुनाहों से माफ़ फरमा और हमें दोज़ख के आज़ाब से महफूज रख। ये कुरान बड़े रुतबे वाला है जो किताब महफूज में लिखा हुआ है। इसको वही हाथ लगाते हैं जो पाक हैं। जो मेरी हिदायत की पैरवी करे ना तो वो बहकेगा न तकलीफ में पड़ेगा। और तुम्हारे पास जो नेमत है सब अल्लाह की तरफ से है। फिर जब तुम्हें तकलीफ पहुंचती है तो तुम उसी से फरियाद करते हो। ऐ पैगंबर, तुम्हारा परवरदिगार ऐसा नहीं है कि बस्तियों को जुल्म से हलाक कर दे जबकि उनके बाशिंदे इस्लाह करने वाले हों। सच्चे मोमिन तो वो हैं कि जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाए तो उनके दिल कांप उठते हैं, और जब अल्लाह की आयत उन्हें सुनाई जाए तो उनका ईमान बढ़ जाता है और वो अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं। और कहो कि तमाम खूबियाँ उस अल्लाह के लिए हैं जो ना औलाद रखता है और ना बादशाही में कोई उसका शरीक है और ना कमज़ोरी की वजह से उसका कोई मददगार है, और तुम उसकी खूब बड़ाई बयान करो। ऐ नबी, मोमिन मर्दों से कहो कि अपनी नज़रें बचा कर रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। ये उनके लिए ज़्यादा पाकीज़ा तरीका है। जो कुछ वो करते हैं अल्लाह उससे बाखबर रहता है। हमने हर चीज़ एक तकदीर के साथ पैदा की है और हमारा हुक्म बस एक ही हुक्म होता है और पलक झपकते वो अमल में आ जाता है। तुम जैसे बहुत सौ को हम हलाक कर चुके हैं। फिर है कोई नसीहत कबूल करने वाला? जो कुछ उन्होंने किया है वो सब दफ्तरों में दर्ज है और हर छोटी बड़ी बात लिखी हुई मौजूद है। और वही है जो रात के वक्त नींद में तुम्हारी रूह एक हद तक कब्ज कर लेता है, और दिन भर में तुमने जो कुछ किया होता है से वो खूब जानता है। फिर उस नए दिन में तुम्हें ज़िंदगी देता है ताकि तुम्हारी उम्र की मुकद्दरा मुद्दत पूरी हो जाए। फिर उसी के पास तुमको लौट कर जाना है। उस वक्त वो तुम्हें बताएगा कि तुम क्या किया करते थे। और आखिरत की बात सच्चाई और इंसाफ के एतबार से कामिल है। उसके कलाम को कोई तब्दील करने वाला नहीं, और वो सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। जो लोग सिर्फ दुनियावी ज़िंदगी और उसकी सजद चाहते हैं, हम उनके अमाल का पूरा पूरा सिला इसी दुनिया में भुगता देंगे और यहाँ उनके हक़ में कोई कमी नहीं होगी। और जिस शख्स ने जुर्म का इर्तिकाब किया है, अगर उसके पास रुए ज़मीन की सारी दौलत भी होगी तो वो अपनी जान छुड़ाने के लिए उसकी पेशकश कर देगा। और जब वो अज़ाब को आंखों से देख लेंगे तो अपनी शर्मिंदगी को छुपाना चाहेंगे, और उनका फैसला इंसाफ के साथ होगा और उन पर जुर्म नहीं होगा। हमने इंसान को एक मिले जुले नुत्फ़े से इस तरह पैदा किया कि उसे आजमाएं, फिर उसे ऐसा बनाया कि वो सुनता भी है, देखता भी है, और वो अपने बंदों के ऊपर मुकम्मल इख्तिदार रखता है, और वो हकीम भी है, पूरी तरह बाखबर भी। जो लोग अल्लाह की किताब के तिलावत करते हैं और नमाज की पाबंदी करते हैं, और जो कुछ हमने उनको अता फरमाया है उसमें से पोशीदा और एलानिया फ़र्ज पड़ते हैं, वो ऐसी तिजारत के उम्मीदवार हैं जिसमें हरगिज़ नुकसान ना होगा। क्या लोगों के लिए ये एक अजीब बात हो गई कि हमने उन्हीं में से एक शख्स पर वही की कि वो लोगों को खबरदार करें और ईमान लाने वालों को खुशखबरी सुना दें कि उनके रब के पास उनके ईमान की बड़ी कदर है। क्या ये लोग कुरान में गौर नहीं करते? अगर ये कुरान अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ से होता तो यकीनन ये लोग इसमें बहुत सा इख्तिलाफ पाते। जो कुरान को तवज्जो से सुनते हैं फिर उसकी बेहतरीन बातों की पैरवी करते हैं, यही है जिन्हें अल्लाह ने हिदायत बख्शी, और यही अहले अक़ल हैं। जो मेरी हिदायत की पैरवी करेगा ना वो गुमराह होगा और ना परेशान हाल रहेगा, और जो मेरे ज़िक्र से एराज़ करेगा
تو اس کی زندگی تنگ ہوگی۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں۔ آخرکار تمہیں ہماری طرف پلٹ کر آنا ہے۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائیں اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا۔ اور دنیاوی زندگی تو ایک کھیل تماشے کی سوا کچھ نہیں، اور یقین جانو کہ متقیوں کے لیے آخرت کا گھر ہی کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تو کیا اتنی سی بات تمہاری عقل میں نہیں آتی؟ لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور اس کا حکم مان لو، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے اور تب تمہیں کہیں سے مدد نہ مل سکے گی۔ اے ہمارے رب، تیری رحمت اور علم ہر چیز پر حاوی ہے، بس جن لوگوں نے توبہ کی اور تیرے راستے پر چل پڑے ان کی بخشش فرما دے اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ کی پکڑ سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ کہہ دیجئے کہ اللہ نے ہمارے مقدر میں جو تکلیف لکھ دی ہے، ہمیں اس کے سوا کوئی اور تکلیف ہرگز نہیں پہنچ سکتی۔ اور وہی تو ہے جس نے تم کو زندگی بخشی، پھر تم کو مارتا ہے، پھر تمہیں زندہ بھی کرے گا، اور انسان تو بڑا ناشکرا ہے۔ اے پیغمبر، دیکھو ان لوگوں نے تمہارے بارے میں کیسی کیسی باتیں بنائی ہیں، چنانچہ ایسے بھٹکے ہیں کہ راستے پر آنا ان کے بس سے باہر ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر وہ اسی پر جمے رہے، بس ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ بے شک جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ اور جو میری یاد سے منہ موڑے گا تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تم جلد ملنے والی دنیا سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ اے ایمان والو، اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اگر تم خود ہدایت پر ہو۔ کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو، یقیناً آنکھ، کان اور دل سبھی کی باس پرس ہوگی۔ اگر تم میں سے کوئی نادانی سے کوئی برا کام کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ بہت غفور اور رحیم ہے۔